हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज भी हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। अरे ये क्या हो गया? ऑलराइट। So in the last class we studied about the Indus Valley civilization, right? Which was here, the Harappa civilization, right here, chapter number 8. ठीक है? Today we'll be doing the chapter the Vedic civilization, the chapter number 9. ठीक है? और उसके बाद द लेटर वैदिक एज, इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, यू कैन सी इट्स जस्ट 7 पेजेस. ठीक है? So let's go to the 82 to 92. The Vedas are neither, let's start from the beginning. Because when you're studying for UPSC, you have to understand each and every word which is written in the NCERT. The reason is because first, and the UPSC exam, as they say, it's to provide equal opportunity to everyone. Now, everyone cannot have access to the coaching, right? So UPSC, just to make the level playing field, it asks or makes question only from the sources which are available to almost everybody. Now, in the government schools as well, the students who are studying in government schools, they are reading NCRTs. They are not getting coaching materials. So you should understand why UPSC asked from the NCRT, right? Not from any coaching institutes. Plus, coaching institutes ka material is just like cramming up. With here, you'll learn a lot more. Okay? Okay, let's proceed. Before we proceed to discuss the Vedic civilization, it will be useful to have some idea about its source, the Vedic literature. The most important sources now. इधर ही हमको एक चीज़ मिल गई. क्या मिल गई भाई? The Vedic literature. Just a second. The Vedic literature. Right, why did I mark this out? For the very simple reason, it is mentioned in your mains syllabus. Now you should understand कि जो main syllabus में है, that is not the complete ancient history as such, means neither the medieval history. It only starts from the middle of the 18th century, which is post Battle of Plassey, up to the modern history. तो आपकी मेंस में वहाँ तक है, लेकिन आपका जो हिस्ट्री में मेंशन है, इट हैज़ मेंशन्ड आर्ट एंड कल्चर, एंड आर्ट के अंदर देयर इज लिटरेचर. सो व्हेन एवर यू एनकाउंटर द वर्ड लिटरेचर, जस्ट बी एक्स्ट्रा फोकस और एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट इट कि व्हाट दे आर सेइंग, राइट? ओके, लेट्स प्रोसीड. Vedic literature. The most important source are the Vedas. Veda means knowledge. The Vedas are neither an individual religious work nor a collection of a definite number of books compiled at a particular time. ठीक है? The Vedic literature had grown in the course of many centuries and was handed down from generation to generation by the word of mouth, which we also call as Shruti tradition. It consists of 3 successive classes of literary creations. Some of these still exist, but many have been completely lost forever. These 3 classes are. So it contains 3 successive classes of literary creations. The one is Vedas, the second is Brahmanas, and the third and the fourth is Aryanyakas and Upanishads. Now UPSC has asked this question कि भाई इसको सीक्वेंस में वो करो कि व्हाट केम फर्स्ट. शायद इधर भी आया था 2024 के मिनट्स में कि Upanishads doesn't contain any parables and Upanishads came before Vedas, I guess. So that was false. You should understand the sequence. First came the Vedas, then the Brahmanakas, and the Aryanyakas, and the Upanishads. This is the sequence. Sequence you should understand and don't miss
ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले तो हमको ये देखना है कि इट इज़ बाय द वर्ड ऑफ माउथ विच वी कॉल एज श्रुति, श्रुति ट्रेडिशन। ठीक है। नाउ हमको सिर्फ ऊपर वाले पैराग्राफ में सिर्फ यही है कि वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ने से पहले फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज वैदिक लिटरेचर, बिकॉज वैदिक लिटरेचर इज द सोर्स ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन. वी नो अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन थ्रू द वैदिक लिटरेचर, right? So this is all nonsense. Don't just completely skip it. Now Vedas are of 4 types. One is Rig Ved, of course. It is the Rig Ved, Samved, Yajurved and Atharvaved. ठीक है। Now Rigved is a collection of hymns, simply hymns. ठीक है। And Rigved is also the oldest record left by the Aryans. Although Aryan invasion theory is a completely work of Marxist propaganda or something, it is not true as such. But just for the sake of exam, we are reading it. The oldest record left by the Aryans. It is Rigved. Now the next is Samved, a collection of songs mostly taken from Rigved. So let's say if we try to draw a Venn diagram, this is Rigved. Then the Samved will be here. ठीक है। So this will be the Samved. Basically, it is a collection of songs which is taken from the Rigved. Now let's move to Yajurveda. Yajurveda is a collection of sacrificial formulas. So you know sacrifices were offered to the deities. ठीक है। इवन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वी हैव सीन्स, महिषासुर मर्दिनी, नौशारों से हमको वो सील पे मिला था, बेसिकली sacrifices, right? So in Yajurved it is basically sacrificial formulas. Atharved is a collection of spells and charms, basically to heal, spells and charms जैसे कि आपने ताबीज पहन लिया, spells is to heal. तभी अथर्ववेद से हमको क्या मिला है, आयुर्वेद। ठीक है। ऋग्वेद, the Vedas from the this is not important. Basically they are saying कि ऋग्वेद is the oldest. ठीक है भाई, हमको पता है। चलें आगे बढ़ें। आगे क्या बोला, the Brahmanas, these are prose texts which contain details about the meaning of Vedic hymns, their applications, meaning of Vedic hymns, applications and stories of their origins, etc. In a way, these contain details about rituals and philosophies. तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके अंदर है क्या। फर्स्ट जो वैदिक हाइम्स थी, सब कुछ ऋग्वेद से ही चल रहा है। ठीक है। अब जो वैदिक हाइम्स थी, अब आगे जितने भी हैं उपनिषद, आर्यनकास, दे विल जस्ट इलैबोरेट ऑफ व्हाट इज रिटर्न। ठीक है। व्हाट इज रिटर्न इन द वेदास, दे विल जस्ट मतलब उस पर और अध्ययन करेंगे। तो वैदिक हाइम्स के मीनिंग, ठीक है, मीनिंग, उसके एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इन अ वे बेसिकली रिचुअल्स, जैसे ये जल वल चढ़ाना, दिस इज ऑल कॉल्ड रिचुअल्स, और उसकी फिलोसफीज, ब्राह्मणस। ठीक है। नेक्स्ट केम द आर्यनकास एंड द उपनिषद. दीज आर पार्टली इंक्लूडेड इन द ब्राह्मणस और अटैच्ड देयर टू एंड पार्टली एग्जिस्ट एज सेपरेट वर्क्स. दिस कैन बी आस्क्ड एज अ स्टेटमेंट. पार्टली इंक्लूडेड इन द ब्राह्मणास मतलब कि ब्राह्मणास में भी इंक्लूडेड हो जाते हैं कई बार, और या फिर उनके अटैच होते हैं। ठीक है। एंड पार्टली एग्जिस्ट एज सेपरेट वर्क्स, कई बार अलग, जैसे आपने अलग आर्यनका एक बना दिया, उपनिषद 1 उपनिषद 2, या फिर आर्यनका 1 आर्यनका 2, दैट इज एग्जिस्टिंग सेपरेट एज अ सेपरेट वर्क. बट व्हेन यू इंक्लूडेड इट इन द ब्राह्मणास, दैट मीन्स इट जैसे एक चैप्टर होगा, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. They embody philosophical meditations of the hermits and ascetics on soul, God, world, etc. The Brahmanas, the Aryanas, and the Upanishads are attached to one or the other of the 4 Vedas. This is important. So basically these, हम जब वैदिक लिटरेचर की बात करें, so हमने वैदिक लिटरेचर में why did we say Vedas, Brahmanas, Aryanas and Upanishads? Because this all contains Vedic literature and Vedas form the core of it. समझे आप? उसी कोर में से सब चीज़ें निकल रही है, समझे? आर्यनकाज और उपनिषद. आर्यनकाज इज बेसिकली रिलेटेड, आरण्य मीन्स अरण्य, विच इज बेसिकली रिलेटेड टू फॉरेस्ट. ठीक है. द सेजेस हु वेंट टू फॉरेस्ट एंड मेडिटेटेड एंड रिटन अबाउट इट, सही है, दैट वाज कॉल्ड आर्यनकाज. एंड उपनिषद, इट इज बेसिकली मोर फिलोसॉफिकल मेडिटेशंस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, गॉड, एटसेट्रा.
ठीक है, एंड वैदिक यू नो इट्स जस्ट हाइम्स. So now people are more reading, people are more and more getting into the minutest details. मतलब जिसे कहते हैं ना एक वैदिक हाइम पे they are writing so much about it. सही है. I remember one person, I don't know who, maybe KN Rao, Professor KN Rao. So if you have studied astrology or have followed him, so he was saying one thing about the classical astrology text, and he was saying कि as classical astrology texts are in सूत्र form, सूत्र जैसे धागे के होते हैं. तो उसमें एक सूत्र का he started writing, kept writing and completed almost like 50 100 odd pages, just one sutra. Similarly, just one these Vedic hymns, they are not just two statements. समझे आप मेरे को, इसमें से कितना ज़्यादा जूस निकला. तो दैट इज ऑल, अरे दिस इज ऑल लिटरेचर. ठीक है, यहाँ तक हो गया. ऑथरशिप ऑफ द वैदिक लिटरेचर, ऑल्दो दिस द हाइम्स आर एट्रीब्यूटेड टू ऋषिज, पायस हिंदूज, एंड ऑल्सो रिमेंबर इट इज नॉट अ समथिंग सम इंडिविजुअल केम एंड wrote in Vedas. No, it is a collection built over the time. ठीक है. Although the hymns are attributed to rishis, pious Hindus have always laid stress upon their divine origin. Thus, the Vedas are called Apurusheya, not created by man, and Nitya, existing in all eternity, while the rishis are known as inspired seers who received the mantras from the supreme deity. तो कह रहे हैं कि और जनरली जो वेदास की जो ऑथरशिप है वो ऋषिस को दी जाती है, सीयर्स को दी जाती है, जिन्होंने लिखा है. बट दे क्लेम, ऋषिस दे से कि भाई जो वेदास हैं दैट आर अपौरुषेय, दैट आर नित्य. अपौरुषेय मीन्स विच इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मैन. हमने नहीं बनाया, ऋषि बोल रहे हैं हमने नहीं बनाया भाई. और ये हम ऐसा नहीं है कि हम आए हैं तब से ही है, नित्य है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है. समझ में आए. और आगे क्या बोल रहे हैं कि दे रिसीव्ड द मंत्रास फ्रॉम दी, आई एम सॉरी जस्ट वन सेकेंड, हाँ. सो दे आर सेइंग कि दे रिसीव्ड द मंत्रास फ्रॉम द सुप्रीम डीटी. एज रामानुजा सेड कि माई डीटी, माई देवी स्पीक्स टू मी. ठीक है. सिमिलरली श्री औरोबिंदो एंड माँ, इफ यू हैव रेड अबाउट देम, तो यू वुड नो कि दे हैव गिवन सो मेनी मंत्रास. So mantras are sprung forth, which means they come from within. The deity puts in your head or your mind or your tongue, whatever. ठीक है. Now the age of Rig Veda. The date of Rig Veda and the Vedic literature is from the subject of keen and protracted controversy. Max Muller, who first dealt with the question, began with the age of Buddha and arbitrarily assigned 200 years to the development of each of the three stages of Vedic literature, and thus came to the conclusion that Rig Veda must have been composed around 1200 to 1000 BC. When questioned and criticized by his contemporaries like W.D. Whitney for his total arbitrary, unscientific, and unacademic method, Max Muller confessed that he was merely speculating and stated whether the Vedic hymns were composed 1115, 1500, 2000, 3000 BC. No power on earth will ever determine. It may, in passing, be stated that Max Muller, as a true Christian, believed in the Genesis stories. This is important. All these Christian missionaries were just propagandists. You know, I feel very sorry कि कैसे उन्होंने हिस्ट्री को बस 4004 BC में बस वहाँ पे तभी वो दुनिया बनी है. Completely unscientific. क्या बोलते हैं, आई वुड से ईगो, कि भाई हमसे बढ़िया तो कोई जानते ही नहीं होगा. एंड बाइबल, मतलब नथिंग एज सच इज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन बाइबल आर नॉट साइंटिफिक एज सच. समझे आप. बट इन हिंदुइज्म ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्क्रिप्चर्स विच हैव बीन, दे आर साइंटिफिक इन नेचर. ठीक है. पुरानाज इफ़ यू रीड, तो पुरानाज वो जो स्टोरीज हैं, दे आर बेसिकली वो जो स्टोरीज़ हैं, यू हैव टू टेक आउट व्हाट इज़ साइंटिफिक एज सच. मतलब उसमें हिरण्यगर्भ की स्टोरी है. ठीक है. हाउ द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड. फर्स्ट इट वॉज क्रिएटेड इन द सी. सही. ऑल दिस that the world was created. We have seen in chapter 5 that the origin of the earth goes back to about 4600 million years, and the origin of human themselves goes back to about 4.2 million years. Similarly, on the analogy of the language of Avesta, some scholars opine that the date of Rig Veda may be 1000 BC, but the fact that some of the Vedic gods, namely Indra, Varun, Mitra, and the two Nasatyas are mentioned in Bhagoskoi Asia Minor inscription of 1400 BC prove that the Rig Veda must have come into existence much before that date.
The Bogosco inscription records a treaty between the Hittite and Mitanni kings, and these gods are cited as witness to this treaty, exactly the way even oath is taken in the courts and an assumption of a public office in the name of God. So they are saying कि now they are trying to fix up the date कि भाई ऋग्वेदा कब आया, आज आया, कल आया, परसों आया, कितने साल पहले आया. तो पहले तो मैक्स मिलर साहब ही वॉज अ ट्रू क्वेश्चन, तो उसने सारी हिस्ट्री को 4004 BC में फिट करने की कोशिश करी और बोला कि ऋग्वेदा ऐसे ही बने होंगे. लेकिन उसके कंटेम्प्रेरीज जो थे, जो एक्चुअली में स्कॉलर्स थे, मैक्स मिलर की तरह बायस नहीं थे, पागल थे नहीं थे, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे कैसे तुम आर्बिट्रेरली असाइन कर सकते हो. तो मैक्स मिलर बोला भाई मुझे लगता है कि कोई पता ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो बेसिकली ही वॉज अ, मैंने फिर से बोलूँगा, क्रिश्चियन मिशनरी प्रोपेगेंडिस्ट. ठीक है, फिर कई लोगों ने बोला कि जो एवेस्टा की जो लैंग्वेज है, ज़ोरोस्ट्रियन जो वो टेक्स्ट है, दैट मैचेस विद ऋग्वेद, एंड अवेस्टा इज़ 1000 BC, तो 1000 BC हो सकता है. नहीं, फिर हमने देखा कि फिर हम इसके आगे जाते हैं, चलो भाई मान लिया 1000 BC, लेकिन फिर हमको 1400 BC में 1400 BC का वो कार्बन डेटिंग से हमने पता लगाया 1400 BC में एक इंस्क्रिप्शन मिला, बोगोस कोई इंस्क्रिप्शन, जो कि ईरान में है. उस बोगोस के इंस्क्रिप्शन में 3 वैदिक गॉड मेंशन है. कौन कौन से? इंद्रा, बोगोस कोई इंस्क्रिप्शन, इंद्रा, वरुण और मित्रा. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस हैज़ बीन आस्क्ड. ठीक है, 1400 BC में. ठीक है, तो और उसमें 3 ये गॉड्स और 2 नसट्यास मिले. ठीक है, और इसके अंदर वो ट्रीटी हुई है किसमें? हिटाइट और मितानी किंग्स में, और दीज गॉड्स आर साइटेड एज विटनेस. तो बेसिकली क्या, उस इंस्क्रिप्शन में 3 गॉड हैं, 2 नसट्यास हैं. बोगोस का इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? ईरान में है. ठीक है, ये हो गया. बोगोस का इंस्क्रिप्शन ईरान में है, और ये गॉड जो थे दैट आर साइटेड एज विटनेस. जैसे यार हम ओथ लेते हैं ना, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ. ठीक है, ऐसे तो सम गॉड्स आर साइट, दीज गॉड्स इंद्रा, वरुण, मित्रा आर साइटेड एज विटनेस टू द ट्रीटी. बाल गंगाधर तिलक on astronomical grounds dated Rigveda to 6000 BC. According to Haman Jacobic, Vedic civilization flourished between 4500 BC and 2500 BC, and the Samhitas were composed in the latter half of the period. Famous Sanskritist Winter filled that the Rigveda was probably composed in the 3rd millennium BC. R.K. Mukherjee pointed that on modern computation we should come to 2500 BC as the time of Rigveda. G.C. Pandey also favors a date of 3000 BC or even earlier. So अभी डेट का ही इनमें चल रहा है. ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं 6000 BC. ठीक है, GC पांडे कह रहे हैं 3000 BC. समझे? तो अभी डेट का फिक्स चल रहा है. तो बट सर्टेनली इट इज़ ओल्डर देन बिफोर 1400 BC. और एक्चुअल में वेदास जो हैं दैट आर अपौरुषेय नित्य. नित्य मीन्स एग्जिस्ट, एटर्निटी से एग्जिस्ट कर रहे हैं. Rigvedic geography. From the names of rivers, mountains and regions mentioned in Rigveda, we have a clear idea of the geographical area in which Rigvedic people who call themselves Aryans lived. The Nadi Sukta hymn of the Rigveda mentions 21 rivers, which include the Ganga in the east and the Kubha, which is in Kabul in the west. All rivers like the Yamuna, Saraswati, Satluj, Ravi, Jhelum and Indus located between the Ganga and Kabul rivers are mentioned not arbitrarily but serially beginning from the east. That is Ganga in the west. That is Kubha in the north. The Rigveda mentions the Himalayas and Mohavant mountains. It also mentions ocean in connection with rivers Sindhu and Saraswati. Sindhu is Indus and Saraswati as आज भी आया था mythical river, but it is not a mythical river as such. And there have been traces Sindhu and Saraswati falling into the ocean. The ocean is also mentioned in the context of foreign trade. The Rigvedic geography therefore covers present-day western Uttar Pradesh, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, होल ऑफ पाकिस्तान एंड साउथ अफगानिस्तान. ठीक है, अभी हम ज्योग्राफी की बात आते हैं. तो ज्योग्राफी कहाँ थी? तो लेट्स से दिस इज द ज्योग्राफी. हिमालयास और मोहावंत माउंटेन्स. ठीक है, और नीचे क्या है? ओशन की बात करिए, और ओशन में कौन कौन सी नदी बह रही आ रही है? सिंधु विच इज इंडस एंड सरस्वती. ठीक है, ईस्ट में कौन सी नदी बह रही है? गंगा नदी. और इन्होंने ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रली जैसे कि गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, जैसे एक सीक्वेंस में है ना, सीक्वेंस भी पूछा है, वैसे ही इन्होंने सीक्वेंस में ईस्ट से स्टार्ट करा है. और कुभा कहाँ पर है? विच इज इन काबुल. ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेट कवर हो गई भाई? गंगा यूपी में है. ठीक है, और कहाँ कहाँ पर हो गई? हरियाणा हो गई, पंजाब हो गई, राजस्थान, और जो भी उसके बीच में, इनके बीच में जो भी नदियाँ आ रही थी दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. जो भी इनके बीच में नदी थी, ठीक है, जितनी सारी भी थी,
इंदस, झेलम, रावी, तो पंजाब भी आ गया, सही है, ये सब भी आ गया, सतलज पंजाब आ गया, ठीक है, तो ये सब इंक्लूड। ऋग्वेदिक स्टेट्स, द टेरिटरी नोन एज वैदिक पीपल was divided due to a number of states, republics and monarchical. The battle of 10 kings gives names of 10 kings who participated in a war against Sudas, who was Bharata, king of Tritsus families. The 10 kings were of the states of Purus, Yadus, Turvasa. Now this is important. First, what is important? कि स्टेट्स, हाउ द स्टेट्स वर ऑर्गेनाइज्ड, रिपब्लिक्स एंड मोनार्किकल। अरे भाई, अरे सर दर्द हो गया, इतने पहले रिपब्लिक होती थी, आदमी खुद इलेक्ट कर सकता था, बिल्कुल। दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ हिंदुस्तान, दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, कि वेन यूरोप and other countries are pooping in their pants, we made a brilliant civilization, ठीक है, जस्ट बी प्राउड ऑफ इट। अब उसमें क्या है, ऋग्वेदिक स्टेट्स के अंदर द बैटल ऑफ 10 किंग्स गिव्स द नेम ऑफ 10 किंग्स हु पार्टिसिपेटेड इन अ वॉर अगेंस्ट सूदास हु वाज भारता किंग ऑफ ट्रित्सुस फैमिली, ठीक है। सूदास कौन थे? भारता किंग थे, ट्रित्सुस फैमिली के। वो 10 राजन, उस वॉर को हम बोलते हैं 10 राजन वॉर। उस वॉर में कौन कौन थे? पुरुष, यदुस, तुर्वासा, अनुस एंड ध्रुयुस, along with 5 others with Alinas, Paktas, Balanas और Sibis and Vishanis. Now you can learn, ये जो आप है ये कैसे याद कर सकते हो? Alinas you can say is related to Ali. Paktas can be related to Pakhtuns, ठीक है। Balanas can be related to Bhallas since Bhallas are in Punjab, ठीक है। Sibis and Vishanins, ऐसे याद कर लेना। बाकी तो देखो, बाकी देखो सब में किस में आ रहा है? उस पुरुष, यदुस, अनुस, ध्रुयुस और तुर्वासास, ये अलग हो गया, ठीक है। और बाकी अलीनास, और बाकी में क्या है देखो, आस, बाकी देखो सब में आस 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 आस, और बाकी ये सिबीस और विशनेंस, अलीनास, पक्तास, बलानास, तुर्वासास, पुरुष, यजुस, अनुस, ध्रुयुस, सिबीस और विशनेंस, ठीक है। द बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द परुशनी रिवर। परुशनी कैसे याद कर सकते हो कि रावी रिवर का पुराना नाम परुशनी था, कि रवि एक पुरुष है। एंड सूदास इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर बैटल ऑफ सूदास। ऋग्वेदा मेंशन पीपल एंड किंग्स लाइक अजीजास, सिग्रुस, यक्षुस एटसेट्रा। द भारतास हु गेव देयर नेम टू द होल कंट्रीज, कौन सी फैमिली थे? द भारतास, ट्रित्सुस फैमिली, ये भी याद कर लेना। The Bharatas who gave their name to the whole country as Bharatvarsha, the most important people of the Rig Veda. They were settled in the region between the Saraswati and Yamuna. Similarly, the Rig Veda gives the location of other people like the Purus in the region of Kurukshetra, the Tritsus east of Ravi, the Alinas, the Paktas, the Balanas and the Sibis west of Indus up to Kabul river. Now you can see these names are somehow related to the Muslim names. Alinas, Ali, Paktas, Pakhtuns, Balanas, you can say Bhallas, but Punjabis were also they used to live there, ठीक है। तो Sibis and west of Indus up to the Kabul river. The struggle for supremacy among different kings and republics was a part of the evolutionary process towards the formation of a larger political entity. So Bharata was the Shudas जो थे, ये थे जो अगेंस्ट शूदास वॉज अ ट्राइब, ठीक है। पार्टिसिपेटेड इन अ वॉर अगेंस्ट शूदास, वॉज भारता किंग ऑफ ट्रित्सुस फैमिली, ठीक है। अब इसमें और भी लोग मेंशन्ड है, अजियास, अब फिर से आस आ गया, सिग्रूस, यक्षुस, ठीक है। भारता ने ही अपने देश का नाम दिया भारतवर्ष। कहाँ पे सेटल थे? सरस्वती और यमुना के बीच में, ठीक है। सरस्वती इंदस से, मतलब उसका जो कर्व है दैट इज स्लाइटली टुवर्ड्स इंडिया, सरस्वती का। तो बिटवीन सरस्वती एंड यमुना दीज पीपल वर सेटल्ड, ठीक। द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऋग्वेदा, ये बहुत बार आता है। वाई डज यूपीएससी आस्क्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन? वाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए आपको बहुत बार पूछा भी है, अकबर के उसमें पूछा है, ठीक है। फैमिली, कुल जैसे बोलते कौन से कुल का है, जैसे आज भी कई लोगों के नाम होते हैं कुलदीप, ठीक है, जो फैमिली का चिराग हो, फैमिली की रोशनी हो। विलेज, ग्राम, क्लैन, बेसिकली कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। क्या है भाई? कुल, ग्राम,
विश, जन, राष्ट्र, कुल मीन्स फैमिली, ग्राम मीन्स विलेज, ठीक है, विश मीन्स क्लैन, जन मीन्स पीपल एंड राष्ट्र मीन्स नेशन। ठीक है, कुल was the smallest unit. It included all the people living under the same roof. An aggregate of several families made up of the gram like today, and its headman was called Gramini. उसके हेडमैन को क्या बोलते थे? ग्रामीणी. दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. द नेक्स्ट लार्जर फॉर्मेशन वॉज कॉल्ड द विश. उसके हेड को क्या बोलते थे? विशपति. ठीक है. लार्जर देन विच वॉज जन. रिगार्डिंग जन वी गेट मेंशन ऑफ पंच जना एंड ऑफ पीपल कॉल्ड यदुस, यादव जन एंड भारत जन. ठीक है. द किंग इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ द जना और द पीपल अबव द जना वॉज राष्ट्र, दैट इज द कंट्री. तो विश को बोलते थे विशपति, ग्राम को बोलते थे ग्रामपति. ठीक है. The hereditary monarchy was the normal form of government, but an elected kings also find mention. We also hear of chiefs democratically elected by the assembly of people, Jan. So there are three ways कि लोग जो कनेक्ट होते इलेक्ट होते हैं, जो ऊपर टॉप के लोग होते थे. वन, इट वाज हेरिडिटरी. ठीक है. आज भी आपको दिखता होगा, आज भी राजनीति में काफ़ी ज़्यादा हेरिडिटरी सामान काम चल रहा है. नेता का बेटा नेता बन रहा है, जनरेशन पे चलता ही रहेगा ये. तो द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टुडे इज ऑल्सो हेरिडिटरी इन नेचर. ऑल्दो वी हैव अ चांस टू थ्रो देम आउट, बट वी बीइंग सो डम्ब, हम हटाते ही नहीं, हम देते ही रहते हैं वोट. अरे इंडिपेंडेंट लोगों को वोट दो, जो पार्टी से जा रहे हैं उनको मत दो. एक बार इनके किले उखाड़ो. सही है. द हेरिडिटरी मोनार्की वॉज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट एन इलेक्टेड किंग ऑल्सो फाइंड मेंशन. वी ऑल्सो हेयर ऑफ चीफ्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बाय द असेंबली ऑफ पीपल. तो कुछ लोग ये हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉर्मल होता था. ठीक है. लेकिन इलेक्टेड किंग भी मेंशन, इलेक्टेड किंग्स का भी मेंशन मिलता है. तो जो असेंबली ऑफ पीपल होती थी, लोगों की असेंबली, लोग क्या है, मतलब जन है. तो लोगों की असेंबली को क्या बोलते थे? वो जो असेंबली होती थी वो भी कई बार चुनती थी. द किंगडम्स राष्ट्र वर जनरली स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय किंग्स, Rajan. But the word Samrat does indicate that some of them must have had bigger kingdoms and enjoyed position of a greater authority and dignity, markedly different from others. The king administered justice with the assistance of Purohit and other officials. For his services, the king was paid bali, voluntary gift or tribute. The bali came to the king from his own people and also from the defeated people. खुद के लोग भी देते थे और जो हार जाते थे वो भी देते थे. थेफ्ट, बगलरी, क्राइम्स कौन कौन से थे भाई? कैटल लिफ्टिंग, आज भी गाय भैंस चोरी हो रही हैं, चोरियाँ आज भी हो रही हैं, बगलरी, थेफ्ट. ठीक है. और लेकिन उनसे उस समय अच्छे से डील किया गया. आज आप FIR कराने चोरी वगैरह की जाओगे तो या तो वो FIR ही नहीं लिखेगा पुलिस वाला, अगर पीछे रजिस्टर के पीछे नोट कर लेगा. फिर अगर उसको पता भी मिल जाएगा तो वो इससे हिसाब कर लेगा, मेरे को इतना तू दे दे और तू छूट जाएगा. तो अगर 4,000 की चोरी होगी, 2,000 पुलिस वाले की जेब में. तो आज भी कुछ चीज़ें ज़्यादा बदली नहीं है. द किंग एडमिनिस्टर्ड जस्टिस विद द असिस्टेंस ऑफ पुरोहित एंड अदर ऑफिशियल्स. तो इससे हमने क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करा? पहले तो ये बोल रहे हैं कि जो राष्ट्र को यूज़ करते थे, वो राष्ट्र को रूल करते थे स्मॉलर स्टेट्स, वो होते थे राजन. लेकिन कई बार शब्द का इस्तेमाल हुआ है सम्राट. क्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है? सम्राट. सम्राट बोलते हैं कि मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के बड़े किंगडम्स भी होते थे एंड दे यूज्ड टू हैव अ लार्जर पॉलिटिकल अथॉरिटी. अगली बार बोल रहे हैं द किंग एडमिनिस्टर्ड जस्टिस विद द असिस्टेंस ऑफ पुरोहित. इससे हम क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं भाई? इससे हम ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं कि फर्स्ट देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर एज इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है. तो जस्टिस भी किंग ही कर रहा था. ठीक है. दूसरा हम क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं कि देयर वाज नो डीलिंकिंग ऑफ बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन. स्टेट एंड रिलीजन वाज लिंक्ड. द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन वाज देयर क्वाइट अ लॉट, क्योंकि पुरोहित
के यूज से ही इज एडमिनिस्टरिंग। ठीक है। Among the important royal officials were the Purohit, chief priest and minister, Senani, army chief, Sena से शब्द हो गया, Gramini, head of village. We also hear of Dutas, which are envoys, and spies. Spas. There must have been many other who are not mentioned in the literature. Great prominence is given in the Rig Veda to two popular assemblies called Sabha and Samiti, which seem to have formed an essential feature of the government. We possess no definite information about the composition of the other or the distinction between the two. Most probably the Samiti, which mainly dealt with policy decisions and political business, included common people, while the Sabha, less political in character, was a more select body of the elders or nobles. It was through these two assemblies that the will of the people on important matters of the Rashtra was expressed. Now they're saying that they're giving the names of few important officials, which are Purohit, which was the chief priest or a minister, Senani, ग्रामीणी हेड ऑफ विलेज, दूतास विच आर एनवॉयज एंड स्पास, जैसे राजदूत बोलते हैं कि नहीं, राजदूत यानी कि फॉरेन वो एम्बेसडर। ठीक है, इसकी बात तो ये सब और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ये याद रखना, जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो याद रखना। इसके बाद दो कमिटीज़ की बात हो रही है, सभा और समिति। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमको इसका इंपॉर्टेंट कंपोजिशन तो नहीं पता कि कितने लोग होते थे, क्या 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 कितने लोग रहते थे, कितनी की असेंबली थी। तो बार हमको ये बोल रहे हैं कि सभा में नोबल्स होते थे और या फिर एल्डर्स बड़े लोग, और समिति जो होती थी जनरल होती थी, जनरल लोगों की असेंबली। ठीक है, पता चल गया। चलो अब आगे जाते हैं। ठीक है भाई, वेल द सभा। अब आगे आते हैं सोसाइटी पे। ऋग वैदिक सोसाइटी कंप्राइज 4 वर्णास। पता है हमको 4 वर्णास कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, लोगों के ऑक्यूपेशन पे होता था, अभी बर्थ बेस पे नहीं हुआ है। टीचर एंड प्रीस्ट को ब्राह्मण्स कहते थे, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्षत्रियास कहते थे, किसान, मर्चेंट्स, बैंकर्स वैश्यास कहते थे, आर्टिशियंस एंड लेबरर्स है शूद्रास। तो यू आर सीइंग कि जो बेसिकली ऑक्यूपेशन के बेस पे, किसान है तो वैश्य है, मर्चेंट है तो वैश्य है, वो दुकान बैंकर है तो वैश्य है, ब्राह्मण है, वो टीचर है, प्रीस्ट है तो ब्राह्मण है। तो हर कोई, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बर्थ एज ऑफ येट। These vocations were followed by persons according to their ability and liking, and the occupations had not become hereditary. अभी बोल रहे हैं कि hereditary नहीं बना, as they become later on. Members of the same family took to different professions and belonged to different varnas is well illustrated by hymn of the Rig Veda. In this hymn a person says, मैं एक सिंगर हूँ, मेरे पिताजी फिजिशियन हैं, मेरे मदर जो है वो कॉर्न को ग्राइंड करती हैं, तो हमारे पास वेरियस ओकेशंस है, ऑक्यूपेशंस है, विच मीन्स इट इज़ नॉट हेरिडरी कि किसान वो क्या बोलते हैं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही होगा, समझे? अभी हेरिडिटरी नहीं हुआ है। It is therefore clear that there was freedom and mobility थी अभी for the adoption of a profession, and the idea of hereditary trades and occupations was not envisaged in the society. The unit of society was family, primarily monogamous and patriarchal. एक ही बीवी रखते थे, 2-3 नहीं। चाइल्ड मैरिजेस भी तब नहीं थी ज़्यादा। There were a few references to the freedom of choice in marriage. अब विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ अ डिजीज हस्बैंड, किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनका छोटा भाई है तो विडो उनसे मैरिज कर सकती थी। द वाइफ वॉज हस्बैंड्स पार्टनर इन ऑल रिलीजियस एंड सोशल सेरेमनीज। द फादर्स प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय सन। द डॉटर कुड इनहेरिट इट ओनली इफ शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट्स। मतलब लड़की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती थी, लेकिन वो तभी कर सकती थी जब वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हो। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज नोन इन मूवेबल थिंग्स लाइक कैटल, हॉर्स, गोल्ड। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज नोन इज मूवेबल थिंग्स। मूवेबल जैसे कि जो चीज़ें चल सकती हैं, जैसे कैटल हो गया, गाय भैंस, घोड़े, सोना, ऑर्नामेंट। ठीक है, अब इससे हम क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अर्लियर अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, बट बीजेपी बीइंग बीजेपी, द पार्टनर of the corporate class deleted the right to property as a fundamental right through the 44th Amendment Act 1978. ठीक है, education. The home of the teacher was a school where he taught the particular sacred texts.
The texts were in the first instance learned by pupils, repeated the words taught by their teacher, a great importance but attached to enunciation and pronunciation. Intense training was given to students in oral tradition. It was this training and learning through this which saved a huge mass of Vedic literature. तो कह रहे हैं कि एजुकेशन कहाँ पर होती थी? टीचर के घर पर ही होती थी, नंबर वन. नंबर टू कि कैसे आदमी प्रोनाउंस कर रहा है, कितना उसमें गैप दे रहा है. जैसे कहते हैं ना कि मंत्रास का एक प्रॉपर वे होता है उसको रिसाइट करने का, तो उस पर बहुत होता है. तो बेसिकली ओरल ट्रेडिशन ही, ठीक है, उनको मेमोराइज कराया जाता था. फूड एंड ड्रिंक्स, milk and its products, curd, butter and ghee formed an import. So basically, since it was an agricultural economy as such, तो mainly the products of the agriculture, उस समय चिप्स तो खा नहीं सकते थे, तो जितनी गाय भैंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि दही हो गई, बटर हो गया, घी हो गया, formed an important part of the diet. There is also mentioned grain cooked with milk. मिल्क, जैसे कि आप ग्रेन कुक्ड विद मिल्क, इसको आप खीर से समझ सकते हो. शीर पका मोदनम, शीरा पका मोदनम, ग्रेन चावल और दूध से बनती है कि नहीं खीर. ब्रेड ऑफ व्हीट एंड बार्ले वॉज ईटन मिक्सड विद घी. तो आज भी जो ट्रेडिशन है, तो एक क्वेश्चन था कल्चर में कि आज भी कल्चर हमारा ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है. तो वैदिक कल्चर में भी जो वीट की जो वो होती थी बेसिकली चपाती ब्रेड, उसको हम लोग घी में डाल के खाते थे और आज भी वही खाते हैं. नॉट ओनली वर फ्रेश fish, birds, wild elements like boar, antelopes, and buffalo, etc., eaten, but on ceremonial occasions, the meat of animals which were sacrificed, such as sheep, goat, and buffalo, etc., was also eaten. The cow was already deemed aganya, not to be killed. The Vedas describe a penalty of death or expulsion from the kingdoms to those who kill or injure cows, alcoholic drinks, sura, and sama. This is important. What are the terms? Sura and soma. Soma, you know. Soma, you can make out. But what is the term sura? Sura is an alcoholic drink. याद रखना, ठीक है. Through their consumption has been condemned because of its intoxicating effect which sometimes gave rise to broils in the sabha. तो भाई कह रहे हैं कि फूड कौन कौन से थे, मैंने बता दिया ऊपर कौन से थे. इसके अलावा दैट इज व्हाट कैन यू इन्फर, यू शुड रीड कि आप इन्फर क्या कर सकते हो. आप ये इन्फर कर सकते हो कि वैदिक पीपल वर नॉट एज सच वेजिटेरियन. कि हिंदू हैं तो वेजिटेरियन होंगे. उस समय मछली, चिड़िया को भी खा के मारा जाता था, है, ऐसे इसमें लिखा है. और जो कई बार जो एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे, शीप गोट, उनको जब सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, दोज आर ऑल्सो ईटन. ठीक है. इकोनॉमिक लाइफ, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल सेंटर्ड अराउंड एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड एंड कॉमर्स. ऑफ ऑक्सन वर यूज्ड फॉर इकोनॉमिक लाइफ. और क्या होगी? एग्रीकल्चर होगी, ऐसा तो नहीं है ब्रिज बना रहे हैं. कैटल रियरिंग एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट कि ट्रेड भी होता था, कॉमर्स भी होता था. ठीक है. ऑक्सन वर यूज फॉर प्लाइंग एंड ड्राइंग कार्ट्स एंड हॉर्सेस फॉर ड्राइंग द चैरियट्स. अदर डोमेस्टिक एनिमल्स वर काउज, शीप, एंड काउ को क्या बोलते थे? अघन्य, विच इज नॉट टू बी किल्ड. ठीक है. अदर डोमेस्टिक एनिमल्स वर काउज, शीप, गोट्स, एसेस, डॉग्स, बफेलोज, एटसेट्रा. तो डोमेस्टिक एनिमल्स कुत्ते पालते थे तब. ठीक है. और देखो क्या है, गाय भी रखते थे. ठीक है. एसेस, ये इंपॉर्टेंट है कि डॉग्स भी तब पाले जाते थे, पालतू डॉग्स. The Rig Veda attached great importance to agriculture. The plough was drawn by the oxen at times in times of 6, in teams of 6, 8 और 11, 12. मतलब 6, 8 या 12 ऑक्सन, क्या बोलते हैं, मतलब कि 6, 8 या 12 की ऑक्सन की एक टीम रहती थी. दे ऑल्सो यूज टू क्या बोलते हैं, वर्क टुगेदर. ठीक है. द ग्रेन्स वर हार्वेस्टेड विद सिकल्स. कम्युनिस्ट पार्टी का वो जो दिखाए ना सिकल्स, जिससे वो काटते हैं, उससे हार्वेस्ट होता था. द मेन्योर वॉज ऑल्सो एडेड फ्रॉम मेन्योर. भी मेन्योर क्या होती है? खाद होती है, जो एनिमल वेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेन्योर. ठीक है. मेन्योर इज डिफरेंट फ्रॉम कंपोस्ट. फ्रॉम वेरियस रेफरेंसेज इन द ऋग वेदा इट अपीयर्स दैट द इरीगेशन वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड. अरे वाह भाई वाह, इरीगेशन भी प्रैक्टिस होता था. Excess of rains and drought is mentioned as damaging the crops. The grains are collectively called yava and dhanya. The later Vedic text mentioned 10 cultivated types of grains. Among the other, अब ये देखो क्या इससे इम्पोर्टेंट हुआ कि इरीगेशन भी प्रैक्टिस होता था. टेकिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस विच इज़ डेफिशिएंट इन नेचर. करेंटली यू कैन, अभी क्या है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें अभी जो न्यूज़ में है दैट इज़ बेसिकली केन और बेतवा. ठीक है. नाउ केन, आई एम नॉट एग्जैक्टली, आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिमेंबर,
बट शायद आई गेस केन रिवर, ये चंबल सिंध बेतवा केन, तो केन ही है जो पन्ना टाइगर रिजर्व से जा रही है। और ये इसमें कह रहे हैं कि देर इज सरप्लस वाटर, लेकिन इसका काउंटर ये है कि द क्लेम दैट इट हैज सरप्लस वाटर इज नॉट एक्चुअल बेस्ड ऑन डेटा। तो ये केन से बेतवा में लेके जा रहे हैं, प्लस पन्ना टाइगर रिजर्व का एक पार्ट भी समर्ज हो जाएगा इन केस द डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर केन। ठीक है। अब तो इरिगेशन ऋग्वेदा के टाइम पे भी होता था। ठीक है। अमंग द अदर ऑक्यूपेशंस, ये पढ़ लेना रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अमंग द अदर ऑक्यूपेशंस पॉटरी मेकिंग, वीविंग, कार्पेंट्री, मेटल वर्किंग, लेदर वर्किंग एटसेट्रा मोस्ट नोटवर्दी। पॉटरी मेकिंग आपको याद होगा कहाँ से चालू हुई थी, ओकरे कलर्ड पॉटरी OCP जो चेलकोलिथिक कल्चर में थी। ठीक है। देन इट केम द ब्लैक 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 एंड वो क्या बोलते हैं, ब्लैक पॉटरी। ठीक है। देन दी पेंटेड ग्रे वेयर एंड लास्टली इट वॉज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है। विच केम अराउंड 700 BC। दिस इज द सीक्वेंस। तो पॉटरी मेकिंग अभी काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। फिर वीविंग, कारपेंट्री, मेटल वर्किंग, अभी बताएंगे कि मेटल वर्किंग, मेटल्स वर कॉल्ड बेसिकली आयाज। सो जब उन्होंने मेंशन द वर्ड आयाज इन, उसमें भी आगे श्याम आया और लोहित आया। श्याम बेसिकली, श्याम कैसा, श्याम भगवान श्री श्याम का जो रंग होता है कैसा होता है, काला। तो श्री श्याम आया मतलब कि आयरन की बात हो रही है, लोहित आया मतलब कॉपर की बात हो रही है। तो लेदर वर्किंग एटसेट्रा मोस्ट नोटवर्दी। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड ओनली कॉपर वॉज यूज फॉर द जनरल टर्म। आयास मतलब ऋग्वेदिक के टाइम पे सिर्फ आयास को हम कॉपर के लिए यूज़ करते थे। इन अ लेटर पीरियड व्हेन आयरन केम इनटू यूज़, कह रहे हैं कि जब लेटर वैदिक पीरियड में जब आयरन यूज़ होने लगा तब हमने आयास को सेपरेट कर दिया। पहले हम आयास को कॉपर ही बोलते थे ऋग्वेदा में, लेकिन लेटर ऋग्वेदिक पीरियड में हमने उसको लोहित आया और श्याम आया बोलने लगे। ठीक है। द ट्रेड एंड ट्रेडर्स वनिक, ये बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वनिक। वनिक मीन्स ट्रेड एंड ट्रेडर्स वर यू नोन इन द ऋग्वेदिक एरिया। बार्टर वॉज एन वोग, मतलब बार्टर सिस्टम बहुत प्रैक्टिस होता था। इट हैज़ बीन फाउंड दैट 10 cows वर कोटेड एज द प्राइज ऑफ एन इमेज ऑफ फॉर एन इमेज ऑफ इंद्र। वाओ भाई, बोल रहे हैं कि बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का एक एग्जांपल दे रखा है कि 10 काव के बदले एक इंद्र भगवान की एक चित्र। द कंसेप्शन ऑफ मनी कैन बी ट्रेस्ड इनटू द मेंशन ऑफ अ गिफ्ट ऑफ 100 निष्कास। मनी, निष्कास मीन्स गोल्ड कॉइन। मनी लेंडिंग वॉज ऑल्सो नोन। There is a mention of an eighth or 16th part of one being paid either as an interest or part of the principal. The seas mentioned in the context of trade and ocean were like pearls and shells. चलो आज इसी पेज तक करेंगे। ठीक है। बाकी बाद में करेंगे। तो 100 निष्कास बेसिकली मीन्स गोल्ड कॉइन्स। ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि 8th और 16th पार्ट ऑफ वन, उसमें इंटरेस्ट भी होता था। इंटरेस्ट, मनी लेंडिंग वॉज ऑल्सो नोन, और उसका इंटरेस्ट कितना होता था, 1/8 विच इज़ इन परसेंटेज टर्म्स इज 12.5%। 1/16 मीन्स 1/16 इज वॉट, आई गेस, हाँ यस 6.25% ये इंटरेस्ट पेड होता था। ठीक है। आज के अगर हम आज से कंपैरिजन करें तो 12.5%, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे, जैसे जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है, तो दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कम है, और ज़्यादा है 1/8। ठीक है। चलो ये बहुत बातें हो जाएंगी। रिलीजन एंड फिलोसफी। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम द गॉड्स वर्शिप्ड जनरली द पर्सोनिफाइड। रिलीजन एंड फिलोसफी से पूछा है क्वेश्चन कि हाउ वाज रिलीजन एंड फिलोसफी डिफरेंट इन वेदास, वैदिक पीरियड एंड देन दैट ऑफ हड़प्पा, ऐसा कुछ पूछा है। तो उस समय personified powers of nature means the forces of nature were given the attributes of persons, individuals, जैसे power, ठीक है, beauty, nature was personified, ठीक है, it was made alive। समझे। वैदिक गॉड्स को 3 हम भागों में बांट सकते हैं। पृथ्वी स्थान, पृथ्वी एज द नेम सेज, पृथ्वी जो पृथ्वी स्थान, पृथ्वी पे रह रहे हैं। अंतरिक्ष स्थान, इंटरमीडिएट, अंतरिक्ष में रह रहे हैं। और द्यू स्थान विच इज़ बियॉन्ड, विच इज़ सेलेस्टियल स्फेयर। ठीक है। टेरेस्ट्रियल, इंटरमीडिएट एंड सेलेस्टियल। तो पृथ्वी पे कौन कौन से भगवान रह रहे हैं, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। सोमा वॉज द, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और द एल्कोहल ड्रिंक अलॉन्ग विद द सूरा। एंड बृहस्पति, बृहस्पति इज अ टीचर ऑफ द गॉड्स। एंड द रिवर्स बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी। रिवर्स भी फर्स्ट कैटेगरी में आती, तो ऑफकोर्स खाएंगी, अंतरिक्ष में जाएंगी क्या नदियाँ हैं, ऊपर सेलेस्टियल स्फीयर में चलेंगी तो नीचे ही रहेंगी।
इंद्रा अपाम नपाट रुद्र वायुवाट परजन्य एंड अपह. तो इंद्रा, वाई आई एम कोटिंग इंद्रा वॉज वेयर. इंद्रा वॉज, ऑल्दो इतना आपसे डीप में पूछेंगे नहीं, आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पृथ्वी स्थान, अंतरिक्ष स्थान एंड द्यूस्थान. ठीक है, इतने ही पूछते हैं, जनरल आपको पूछते हैं. तो इसमें इंद्रा मैंने आपको क्यों मार्क करा, बिकॉज नंबर 1 इंद्रा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड. नंबर 2, अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया मनी का कि कितनी काउस, 10 काउस वॉज कोटेड फॉर एन इमेज ऑफ एन इंद्रा. तो इंद्रा वॉज एन इंपॉर्टेंट गॉड, सो यू शुड नो कि कहाँ थे, कौन से अंतरिक्ष उसमें अंतरिक्ष स्थान में थे. तो इंद्रा अलॉन्ग विद रुद्र. सो रुद्र, अब रुद्र, नाउ यू नो कि एक गॉड की इंपॉर्टेंस, फर्स्ट इट वॉज एन अंतरिक्ष स्थान, नाउ रुद्र fierce form of Shiva has become more important, and Indra's position as far as the god as we worship today has declined over the years. You can say fame. Vayu, Vat, Parjanya and Apa. Water to the second, Apa is basically water. You should know what do you mean by Apaha. Apaha को बोलते थे हम पानी. ठीक है. To the second and Dayus, विष्णु, आदित्यास, विष्णु भगवान, आदित्य, सूर्य, सावित्री, पुषान, वरुण और मित्रा कौन से थे, थर्ड पे थे. नाउ अब आप इससे कंफ्यूज, एक्सेप्शन है, इंद्रा सबसे इंपॉर्टेंट था, उसको अंतरिक्ष में रखा आपने, और वरुण और मित्रा जो बाकी थे भगवान जो थे, जो आपको बोगस के इंस्क्रिप्शन में भी मिले थे, दोज वर केप्ट इन द थर्ड विच इज द्यूस्थान. उषाज एंड द अश्विन्स टू द, नहीं ओके, ये भी सारे भी सेकंड में, रियली सॉरी. उषाज एंड द अश्विन्स टू द थर्ड. उषाज और अश्विन कहाँ थे, टू द थर्ड उषा. ठीक है. इंद्रा एंड वरुणा द सुप्रीम कॉस्मिक एंड मॉरल रूलर. पूछा है कि नहीं, वरुणा वॉज द, वो रित और धर्म के ऊपर जो सवाल आया था प्रीलिम्स में, अब समझ में आया कि नहीं, वरुण वॉज व्हाट, the supreme cosmic and moral ruler was Varuna. Stand out in that order, preeminent above the rest. Agni and Som were also popular deities. Agni was revered as the messenger between the earth and the heaven. तो हम जब कहते हैं ना कि हमारी जो अग्नि में हम आहुति देते हैं, तो कहते हैं कि जो हम बोलते हैं वो that through the flames goes reaches up to the god. So Agni was revered as a messenger. Further, Agni is the only god who is regarded as present among all the categories of gods. तो अग्नि जो god हैं, although it has been mentioned, क्या बोलते हैं, द पृथ्वी स्थान, बट इन रियलिटी इट इज इन ऑल थ्री स्थान, पृथ्वी स्थान, अंतरिक्ष स्थान एंड द्यूस्थान. द गॉड्स आर डिस्क्राइब्ड एज बॉर्न येट दे आर इमॉर्टल. इन अपीयरेंस दे आर ह्यूमंस. दिस इज इंपॉर्टेंट. दे आर सेइंग दे आर एज बॉर्न, दे आर बॉर्न, उनका जन्म हुआ है, बट दे आर इमॉर्टल. इन अपीयरेंस दे आर ह्यूमंस, दो समटाइम्स दे आर कंसीव्ड एज एनिमल्स. एग्जाम्पल, दयायुज एज अ बुल, सन एज अ स्विफ्ट हॉर्स. ठीक है, ये आपने पढ़ा है ना, दयायुज ऊपर गॉड, उसमें अंतरिक्ष स्थान में. द फ्लैश फूड ऑफ मैन सच एज मिल्क, ग्रेन, फ्लैश एटसेट्रा बिकम्स द फूड ऑफ गॉड्स व्हेन ऑफर्ड इन द सैक्रिफाइस. ऑन द होल द गॉड्स आर बेनिवोलेंट. सम ऑफ देम आल्सो हैड मेलेवोलेंट ट्रेट्स लाइक रुद्र एंड मरुत. मरुत इज द deity शिवा, सॉरी हनुमान जी. मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम. ठीक है. अब बोल रहे हैं कि रिलीजन एंड फिलोसफी में क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया पर्सोनिफाइड, नेचर वॉज पर्सोनिफाइड. उसके बाद जो डीटीज थे, दैट वाज आल्सो गिवन द नेचर ऑफ ह्यूमंस. दे वर मेड और डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस. समटाइम्स दे वर हाफ मैन हाफ एनिमल, एंड समटाइम्स दे वर कंसीव्ड एज एनिमल्स, जैसे कि दयायुज वॉज बुल एंड द सन वॉज अ स्विफ्ट हॉर्स. ठीक है. एंड द फूड, नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, द फूड ऑफ ह्यूमंस बिकेम द फूड ऑफ गॉड्स. ठीक है. यस. So this is the part 1 today. I hope you liked it. अगर आपको पसंद आया then like it, share it and subscribe the channel, because I am on a mission कि पहले आपको सारी NCERT पढ़ाऊँ. ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह फालतू के आपको ये रोज़ अपडेट दे रहे हैं, छोड़ दो इनका न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दो. इवन दैट क्या बोलते हैं जो आपका ये था, पता नहीं, एक वर्ल्ड कोई चलाते हैं जियो पॉलिटिक्स का चैनल. इफ़ यू कीप वॉचिंग इट ना, आपके दिमाग में भी यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर सिविल सर्विसेज इन अ डेकेड. That is a news. That will not be used in any case for your examination. You should read NCERT. Go for the क्या बोलते हैं, authentic sources. Like if you want to read about Yojana, that will help in writing a mains examination. News देखना बंद कर दो. ठीक है. चलो बाय.